बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, we are trying to go through our chapter number 4, and in the previous lessons we have talked about the environment and the components of environment, like biotic components and abiotic components. So can you tell me that what about biotic components? बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? आपके ज़हन में आ रहा है? याद आया कुछ आपको? बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? यस, ऑफ कोर्स, all living organisms are the component which are called as biotic components, like all animals, all plants and decomposers. Today we are going to discuss about the abiotic components, and key terms of our today's lesson are abiotic, light, temperature, air. These are the terms we are going to go through in this lesson. So first of all, I would like to make a map, make a key of abiotic components. Abiotic components are the components which are non-living components. कौन से components हैं? Non-living components हैं जो abiotic components हैं. अब इनमें इनको अगर हम डिवीजन्स करें, इसको हम देखें कि abiotic components कौन कौन से हैं, तो in our surrounding we can see water, light, temperature, air, soil. These are the abiotic components. तो सबसे पहली बात जो हमने देखी, what about abiotic components? Abiotic components are non-living components. Animals and plants इस पे नहीं हैं. Water, light, temperature, air and soil. These components also really interact the biotic components, and one by one we are going to go through these all abiotic components, how they are important and how they interact in our lives. So the first of all, let's talk about light. The three major points are to be discussed, and three major points are there which are really very much important, and by which we can guess that how the light is important in life. Sun is the ultimate source. Number one, what is the source of light? So the sun is the ultimate source of light. Plants need sunlight for photosynthesis. लोग हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि plants with the process of photosynthesis they produce their own food, and for the process of photosynthesis they really need sunlight. Without sunlight the process of photosynthesis cannot be happen. So it means that sunlight is really important for the photosynthesis, and all animals use the food prepared by plant. So अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकेगा और वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेंगे. ठीक है, और जब पौधे अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकेंगे, द प्लांट्स विल नॉट बी सर्वाइव. अब प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे तो हाउ ऑन एनिमल्स कैन सर्वाइव. तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि लाइट एबायोटिक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझ लेनी चाहिए कि इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. ओके जी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट, टेम्परेचर. सम प्लेसेस लाइक डेजर्ट्स आर टू हॉट and others like glaciers are too cold
फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। यानी कुछ प्लेसेस ऐसी हैं अर्थ पे, लैंड पे, ज़मीन पे, इस दुनिया में कि जो बहुत ज़्यादा हॉट है, इतनी हॉट है कि शायद लाइफ पूरी अच्छी तरह से पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? वो हैं डेजर्ट्स, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स क्या है कि बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ जमी हुई होती है, हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ जो है वो नज़र आएगी। ठीक है जी। तो वो टू कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा सर्द हैं, वहाँ पर भी लाइफ जो है वो आसानी के साथ मुमकिन नहीं है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक रेंज है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्टिव रहने के लिए टेम्परेचर की रेंज रिक्वायर्ड होती है। तो टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस अंदाज में टेम्परेचर कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स पूरी तरह से इससे अफेक्ट होते हैं, इससे मुतासिर होते हैं। अगर टेम्परेचर की रेंजेस उन रेंज से बढ़ जाए या कम हो जाए जो कि लाइफ के लिए पॉसिबल है, तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी भाई। ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स जो थे हमने डिस्कस किए। एंड द नेक्स्ट वन इज एयर। एयर क्या है? अब पहले हम देखें एयर है क्या। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। भाई एयर में ना बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है ये एयर जो है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये तो पता चले एयर है क्या चीज। तो मिक्सचर है गैसेस का। एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर। हवा में मौजूद है ऑक्सीजन, और आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए एयर को अंदर लेके जाते हैं, और एयर अंदर ले जाने के साथ ऑक्सीजन जो है वो हम हासिल कर लेते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो रेस्पिरेशन इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस टू लिव। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली ऑक्सीजन इज़ यूज्ड to break down the food into energy. So this is very important for the life of living organisms, respiration, and without air it's not possible. तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि किस हद तक, किस कदर एयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने सिर्फ 3 फैक्टर्स को स्टडी किया है, लाइट, टेम्परेचर और एयर को। इन 3 फैक्टर्स को स्टडी हमने कर लिया, और इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि दीज 3 एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये कितनी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। लिविंग, ये बायोटिक कंपोनेंट्स तो नहीं है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट का ये ऐसा कंपोनेंट है, ये भी ऐसे कंपोनेंट हैं कि जिसके बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर वर्कबुक्स। सो ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 42. On this page we have a column to match and a question of extend your thinking. So let's match. I already have done this. Abiotic, non-living. Mixture of gases, air. Air is a mixture of gases. हमने अभी इस पे बात की है कि air is a mixture of gases. Need sunlight. Definitely the process of photosynthesis needs sunlight. Essential for life. Water is essential for life. Too hot place. क्या थी too hot place? जो too cold थी वो तो glaciers थे. Too hot क्या थी? Yes, of course, desert. And at the end of this page, here is a question. Note down the answer, please. Question is, where does the main source of energy come from in an environment? Answer is, the main source of energy comes in an environment through sun. Okay, now let's talk about today's diary, today's homework. Today's homework is that complete and learn
वर्कबुक पेज नंबर 42, वर्कबुक का जो पेज है 42, इसको आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है, आपने भी मैचिंग कर लेनी है और इस क्वेश्चन को राइट डाउन भी कर लेना है और इस पेज को आपने लर्न भी कर लेना है, गो थ्रू भी कर लेना है। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, यही तीनों फैक्टर्स जो हमने पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस किए हैं आपकी बुक के ऊपर भी मौजूद हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स में, तो आपने उन वहां से भी इसकी रीडिंग करनी है और इनको वहां से भी गो थ्रू करना है, एक दफा दोबारा रीडिंग करके गो थ्रू करना है। और पेज नंबर 42 इज योर होमवर्क, कंप्लीट एंड लर्न द पेज नंबर 42 ऑफ योर वर्कबुक। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।